Hello friends, welcome to online classes. The subject of business economics. Today's topic module number 1, role of health and family welfare in India. My dear friend, today's topic role of health and family welfare in India. The Niti Aayog has allocated $55 billion under 12th five-year plan in the Ministry of Health and Family Welfare, which is 3 times over than that of allocated by the 11th five-year plan, that is from 5.5% to 8% from 2009 to 2012. The health and family welfare sector can be broadly be categorized in the terms of the infrastructure, facilities and policy programs. The WHO defines health as a state of complete physical, mental, and social well being, and not merely an absence of disease of infirmity. However, in recent years, it cannot be defined merely as a state at all, but is seen as a process of continuous adjustment to be changing demands of living and the changing meaning we give to life. It is a dynamic concept. So my dear friend, today's topic role of health and family welfare in India. नीति आयोग ने क्या किया? नीति आयोग ने 5 ईयर प्लान में, अभी नीति आयोग से पहले कौन सा था? प्लानिंग कमीशन था. नीति आयोग से मीन्स 1955 को प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ. प्लानिंग कमीशन 5 साल का क्या प्लान करता है, वैसे ही 2014 से नीति आयोग स्टार्ट हुआ 12th फाइव-ईयर प्लान में. अभी 12th फाइव-ईयर प्लान में क्या बताया है कि कम से कम 12th फाइव-ईयर प्लान और 11th फाइव-ईयर प्लान, ये दोनों का हम यदि डिस्कशन करेंगे तो जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में कुछ उन्होंने जैसे 5.5% एंड 8% के बारे में डिस्कशन किया है. और हेल्थ के बारे में उन्होंने जो बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड पॉलिसी प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किया है. अभी आपको पता है, अभी ये कोरोना महामारी के वजह से सबके माइंड में या सबके सुनने में आया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी ये WHO ने क्या डिफाइन किया है? WHO ने हेल्थ के बारे में क्या डिफिनीशन बताई? तो क्या डिफिनीशन है? तो उन्होंने कहा है कि जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल है, अच्छे है, और उसको उनको कोई भी डिसीज नहीं है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? हेल्थ कहेंगे. और कंटिन्यूस वो अपने लाइफ के अंदर चेंजेस हो रहा है और कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ डिमांड बढ़ गया है. ये सब WHO ने अभी इसके बारे में, हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया है. क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. जैसे 17 मार्च 2020 में हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, या फर्स्ट लॉकडाउन 24 मार्च 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ. तो ये क्या है? इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंजिंग डिमांड, चेंजिंग एडजस्टमेंट. ये सब मीन्स आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली क्या हुए? वेल है क्या? नहीं है, इम्बैलेंस है. तो डिसीज स्टार्ट हुआ. कौन सा डिसीज स्टार्ट हुआ? कोरोना महामारी, कोविड-19 ये स्टार्ट हुआ.
तो इसके बारे में मीन्स इम्पॉर्टेंट ये क्या है कि हेल्थ का एंड फैमिली वेल्थ का इंडिया के अंदर क्या रोल है, तो हमें डिस्कस करना है। तो गवर्नमेंट ने हेल्थ के बारे में क्या क्या किया है, पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज। सिंस इंडिपेंडेंस India has built huge health infrastructure in the form of primary, secondary, and tertiary healthcare institutions like primary health centers (PHCs), community health center (CHCs), hospitals in public, private, and voluntary sectors. Skill human resource in 3 centers. Hospitals are provided by a number of medicals, paramedical institutions, including Ayush. Ayush means Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. इसका नाम क्या है? आयुष। Next, the National Health Policy 2017. Its main principles were: number 1, to encourage profession, integrity and ethics in healthcare delivery. Next, promoting equity and minimizing disparities in all aspects and classes of society. Next, universal healthcare system to be designed to cater to entire population, including special groups, patient centered and quality of care. Next, accountability. Next, decentralization, dynamism of healthcare system. तो नेक्स्ट, national health program. There were various national health programs initiated by the government. They were as follows. Number 1, the Communicable Disease Program. The control of communicable disease like malaria, dengue, chikungunya, AIDS, TB, etc. cause due to adverse environmental conditions continue to pose a great threat in coming decades. कि अभी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में क्या डिस्कस किया है कि जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, ये सब टोटली स्टेप बाय स्टेप चेन सिस्टम है। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, तो उन्होंने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में नंबर 1 बताया कि जो कम्युनिकेबल डिसीज प्रोग्राम है, जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया है, डेंगी है, चिकनगुनिया है, एड्स है, टीबी है, इसके बारे में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है इसके बारे में ये डिकेड में उन्होंने उसको कंट्रोल किया है। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी स्कीम। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी स्कीम। इट इंक्लूड्स द नेशनल ट्रस्ट स्कीम। Number 1, Samarth. Samarth is center-based scheme introduced in July 2005, which covers men and women for short and long-term health care. मीन्स जुलाई 2005 में कौन सी स्कीम इंट्रोड्यूस किया? समर्थ। अब ये समर्थ स्कीम क्या करता है, किसको कवर करता है? जो मेन एंड वुमेन म्हणजे महिला आणि पुरुष ये दोनों के लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है हेल्थ केयर के लिए ये समर्थ स्कीम स्टार्ट किया जुलाई 2005 में। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, दिस स्कीम प्रोवाइड्स कैश असिस्टेंस एंड द सर्विस ऑफ हेल्थ वॉलंटरीज। आशा, उसको हम क्या कहते हैं? आशा। नेक्स्ट, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इंट्रोड्यूस ऑन जून 2011 टू बेनिफिट प्रेग्नेंट women who access government facilities for their delivery.
It is implemented at all state, central एंड यूनियन टेरिटरीज। अब ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये जून 2011 से स्टार्ट हुआ है। जैसे आपको पता है 108 का जो एम्बुलेंस आता है, वो 108 का एम्बुलेंस ये जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट वीमेन है, उसको बेनिफिट देती है। उसको जो डिलीवरी का जो फैसिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज में ये इम्प्लीमेंट किया है, वो उसको प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी फैसिलिटीज के लिए। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष्य। मिशन इंद्रधनुष्य, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड्स फ्री वैक्सीन फॉर चिल्ड्रंस अगेंस्ट 12th life threatening disease to 26 मिलियन एनुअली। मीन्स ये वैक्सीन चिल्ड्रन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वैक्सीन क्या है? मिशन इंद्रधनुष्य जो चिल्ड्रन के लिए वैक्सीन है वो गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करता है। जैसे आपको पता है पोलियो है, पोलियो का जैसा वैक्सीन है, वैसे 2 बूंद जिंदगी के, अमिताभ एडवर्टाइज करता था ना, 2 बूंद जिंदगी के पोलियो को, वैसे ही ये मिशन इंद्रधनुष्य है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006। इट एम्स एट करेक्टिंग इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। Next, National Ayush Mission was launched during the 12th plan by Ministry of Health and Family Welfare for implementing through 3 states and union territories. Next, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY 2008, a health insurance scheme for BPL families providing IT-enabled and smart card-based cashless health insurance, including maternity benefit cover up to rupees 30,000 per annum on a family floater basis, especially for cross-off workers एंगेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY 2008 ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये कौन सी स्कीम है? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अकुशल कामगार जो है, उनके लिए ये 30,000 कवर का ये बेनिफिट इंश्योरेंस है। ये हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस इंश्योरेंस है। स्मार्ट कार्ड या IT स्मार्ट कार्ड गवर्नमेंट ने इनको दिया है, BPL कैंडिडेट को या BPL बेनिफिशियरी को दिया है। नेक्स्ट, लॉस्ट कॉस्ट एडवांटेज। द लो कॉस्ट मेडिकल सर्विस हैज रिजल्टेड इन द यूज इन द कंट्रीज मेडिकल टूरिज्म, attracting patients from across the world. For example, telemedicine, patient remote monitoring. अभी ये क्या दिया है उन्होंने? जो लास्ट पॉइंट क्या है? मेडिकल सर्विस प्रोवाइड किया है। मेडिकल जैसे टेलीमेडिसिन मीन्स आप फोन करेंगे, फोन करने के बाद जो मेडिकल स्टोर से वो आपको घर में लाके डिलीवरी करेगा, उसको मेडिकल टूरिज्म बोलते। उसको हम क्या कहेंगे? मेडिकल टूरिज्म। एंड लास्ट पॉइंट, Indian healthcare sector is grow in the coming decade due to growing demand, attractive opportunities, availability of a large pool of well-trained medical professionals, policy support to increase investment innovation in the form of research facilities and modern technology, for example COVID-19। जैसे आपको पता है कि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में क्या बताया कि अभी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम जो कमिंग डिकेड है, जो आगे का जो डिकेड है, डिकेड में 10 साल, जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिकेड। वैसे न्यू डिकेड में अगले 10 साल में मीन्स 2030 तक, 2020 2030, ये 10 साल का जो डिकेड है, ये 10 साल का क्या है? ग्रोइंग डिमांड रहेगा।
अपॉर्चुनिटीज का एंड अवेलेबिलिटी का, मीन्स अच्छे मेडिकल स्टोर्स रहेंगे, अच्छे हॉस्पिटल रहेंगे, अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे, अच्छे पॉलिसी रहेगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेंगे, इनोवेटिव प्रोग्राम रहेंगे, रिसर्च रहेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहेगा। जैसे अभी कोविड-19 जो कोरोना महामारी है उसके ऊपर भी अभी वैक्सीन का रिसर्च चल रहा है, अभी तक उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला है। और आपको पता होगा परसों 15 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द गवर्नमेंट वुड सून अनाउंस द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अंडर विच एवरी सिटीजन वुड गेट ए हेल्थ कार्ड। नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को क्या बताया है कि जो अनाउंस उन्होंने किया है 15 अगस्त से जो इंडिया में स्टार्ट हुआ, कौन सा? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इंडिया में 15 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ। हर एक इंडियन पीपल को, हर एक इंडियन सिटीजन को हेल्थ कार्ड मिलेगा। अभी इस हेल्थ कार्ड में क्या रहेगा? उसका वो कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गया, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया, फिर वो कैश ले उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट लिया है क्या, फिर बाद में कितना उसको टैबलेट को कितने उसका कितना अमाउंट हुआ, ये सब टोटल हेल्थ इंफॉर्मेशन, उसको कौन सा डिसीज हुआ क्या नहीं, टोटल उसका प्रोग्रेस कार्ड या उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड, उसको हम क्या कहेंगे? हेल्थ आईडी। हेल्थ आईडी में उसके अंदर जो हेल्थ आईडी उसको मिलेगा, वो हेल्थ आईडी में पूरा उसका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड रहेगा। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लॉन्च किया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ए बिग थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।